اللہ اکبر اللہ اکبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر محترم ناظرین، تمام دیش واسیوں کو، تمام برادران وطن اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھی طریقہ سے عید الاضحیٰ اطمینان و سکون کے ساتھ، خوشی و مسرت کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں جو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی بات ہے قربانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت پسند ہے، اور جو عید کا میسج ہے، جو عید کا پیغام ہے، جو قربانی کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ ایک اہم میسج ہے۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قربانی کرنے کے جو سب سے پسندیدہ بہترین چیز، جو سب سے زیادہ قریب ہو، اس کی قربانی کیجیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ بہت اچھی طریقہ سے جانتے ہیں۔ دمبا کا آ جانا، پھر قربانی ہو جانا، جبرائیل علیہ السلام کو حکم دینا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ میں مسلط ہے۔ پھر شیطان کا وسوسہ دینا، شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکاتے ہیں کہ آپ جو عمر دراز بڑے بزرگ ہے اور خوبصورت سا لڑکا پیدا، وہ ساری مسئلے اپنی جگہ میں۔ قربانی کے مقاصد کیا ہے؟ قربانی کا ایم کیا ہے؟ قربانی کا جانور کا نہ گوشت اللہ تبارک تعالیٰ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، تو کیا پہنچتا ہے؟ وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس نیت سے، جس طریقہ کار سے آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کا مقصد صرف اور صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ مطلب یہ ہوا، قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا سب سے پہلے آپ کے اندر جو ہے حسد، بغض، جلن، کینہ، اس کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دیجئے۔ اور قربانی کا مطلب ہے دوسرا اہم مطلب یہ بھی ہے کہ جس طریقہ سے جب اسلام کو ضرورت پڑے آپ کو قربانی کرنے کی، قربانی دینے کی، سیکریفائس کرنے کی، آپ کی جو سب سے بہترین چیز ہے زندگی میں، اس کی بھی قربانی کیجئے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، رب کی ربوبیت کے لیے، رب کی قربت کے لیے کرنا ہے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر نفسیاتی بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے وسوسے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو ختم نہیں کرتے، ہمارے اندر نفرتیں ہیں، بھائی کو لے کے نفرتیں ہیں، پڑوسی کو لے کے نفرتیں، ایک دوسروں کو لے کے نفرتیں ہیں، تو قربانی کے مقاصد کہیں نہ کہیں فوت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قربانی صدق کے دل سے ہونی چاہیے، خلوص دل سے ہونی چاہیے، عقیدت و محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خوش نمائی نہیں ہونی چاہیے، خسامت پسندی نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔
दूसरे के कंपटीशन में करने के लिए नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कुर्बानी का एक अहम मकसद ये है कि जब कुर्बानी करते हैं तो उसमें पड़ोसियों का ख्याल रखना है, जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुआ उनका भी ख्याल रखना है। तो ये सारे अहम मकासद जो है कुर्बानी का है। कुर्बानी के दिन एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग अजीम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लोकतांत्रिक कंट्री है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कुर्बानी के दिन मिठाइयाँ, सवैयाँ, लच्छे आपके पड़ोसी में जो भी रहते हैं, भले वो मुस्लिम हो चाहे ना हो, उनको प्यार से अपने दस्तरखान पे बुलाइए। ईद उल अज़हा की जो मिठाइयाँ हैं, जो सवैयाँ हैं, लच्छे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, बिरयानियाँ उनको खिलाइए, आपस में भेदभाव को ख़त्म कर दीजिए, मील मोहब्बत पैदा कीजिए, नफ़रतों को ख़त्म कर दीजिए, मोहब्बत पैदा कर दीजिए, अदावत को ख़त्म कर दीजिए, उल्फत पैदा कर दीजिए और पड़ोसी को ख्याल रखें। यही इस्लाम की तबलीग है, यही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अगर हमारे अंदर जर्रा बराबर भी दिल के किसी गोशा में कीना है, अगर आपके अपने भाई से बात नहीं होती है, अगर कुर्बानी करते तो सबसे पहले आपके अंदर जो दिल में कीना है, जो नफरत है, उसको खत्म कर दिए, फिर उसके बाद जानवर की कुर्बानी कीजिए। ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होगा। रब तबारक व तआला की कुर्बत के लिए कुर्बानी कीजिए, मतलब रब को जो चीज़ राजी हो, जो बेहतर लगे, उसके लिए कुर्बानी कीजिए। मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीक़ा से इस्लाम में दो कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा अजीम कुर्बानी है, एक जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने साहबजादों को कुर्बानी की जगह में ले जाना, ज़बा करना, फिर दुम्बे का आ जाना। दूसरा प्रैक्टिकल अमल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे करीम जो करबला के मैदान में कुर्बानी दे करके पेश किया, शहादत पेश की, एक वो शहादत है। कहने का मतलब है इस्लाम हमेशा से कुर्बानी का दर्स देता है। मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी में जितने बड़े एम होंगे, जितने बड़े मकासद होते होंगे, उतनी बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जितनी बड़ी आजमाइशें होगी, उतनी बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर ये दुनियादारी के तौर से अगर मैं समझाऊं, अगर इस दुनिया में कामयाब भी होना चाहते हैं तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि इम्तहान में अच्छे नंबर से पास करें तो अपनी खुशी वगैरह को कुर्बान करनी पड़ेगी। तो ये सारे बहुत सारे मामलात हैं, आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर इत्तफाक को इत्तेहाद नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मौके से तमाम आलम इस्लाम को एक जगह में इकट्ठा करके, एक कौम मुस्त होकर के जिस तरीक़ा से अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, जिस तरीके से मैं हाजिर हूँ आपकी बारगाह अकीदत में, जब तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान कहते हैं तो इस्लाम ने ये इत्तेहाद का मकसद दिया है, ये इत्तफाक का पैगाम दिया है, एक यूनिटी ब्रदरहुड का पैगाम दिया है। हम लोग आपस में भाई भाई है, हम लोग आपस में नफरतें पैदा न करें। मगर क्या हो गया हमारे अंदर, मसलकी हमारे अंदर झगड़े झमेले हैं, बिरादरी के झगड़े झमेले में आ गए, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे को खुशी को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस्लाम की तबलीग के खिलाफ है, इस्लाम की सुन्नत के खिलाफ है, हमारे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। इस सारी चीज़ को मिटा दीजिए। हम एक कौम है, एक खुदा को मानने वाले हैं, एक रसूल के मानने वाले हैं, एक कलमा को पढ़ने वाले हैं। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, इसके अलावा कुछ नहीं। हम दुनिया की जिस गोसे में भी रहती, रूह है ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी रहते हैं, हम लोग सब लोग भाई भाई हैं, इत्तफाक यूनिटी के साथ रहे। और ख़ास कर जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे वतनी जो भाई हैं, वो हमारे वतनी भाई हैं, उनका भी लिहाज रखें, मोहब्बत को पैगाम काम करें, नबी के पैगाम काम करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, दोस्तों से मोहब्बत करें। चलिए फिर से एक बार तहे दिल के साथ तमाम बिरादरान वतन को ईद उल अज़हा, तमाम दोस्त अहबाब को ईद उल अज़हा मुबारक, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा मुबारक। ये पैगाम काम करें, ये मैसेज काम करें अपने अंदर। आज के दिन जिस तरीक़ा से आप जो कुर्बानी रब को राज़ी करने के लिए करते हैं, इसी तरह अपने जहन और दिल दिमाग से जो भी नफ़रतें हैं, जो भी अदावतें हैं, जो भी बुग़्ज़ कीना, हमेशा हमेशा के लिए उसको कुर्बान कर दीजिए। एक फ्रेश जिंदा दिल होकर के रहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now